Yes. Okay. So let us start with the uh, next topic in this chapter. We already start with the chapter wave optics last time, and we already seen about the Newton's corpuscular theory, right? And we have seen that Newton has proposed that the light is made up of corpuscles, okay, and these corpuscles are emitted by the source of light, and they travel in the straight line uh, in the same direction. And also he stated that the different colors are due to different sizes of these corpuscles, and these corpuscles are having negligible masses, and these corpuscles are attracted by the refracting surfaces, and hence refraction takes place, and these corpuscles are just repelled by the reflecting surface, and hence the reflection takes place. So these are the some main points of Newton's corpuscular theory. But as we have already seen that it can explain in a better way the concept of reflection, refraction of light, no doubt. Even rectilinear propagation can also be explained in a better way, but he fails to explain the complicated phenomena in light like interference, diffraction, polarization, and double refraction, which are very complicated phenomena in light, which are not explained by the simple theory, Newton's corpuscular theory. And the second thing is that the mass of the source doesn't reduce, even if the particles have some negligible mass, and whenever the particles are emitted for a long time from the source, the mass of the source doesn't undergo any reduction. That is cannot be explained on the basis of न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, क्योंकि अगर पार्टिकल्स को मास है तो पार्टिकल्स के मास इमिट होने की वजह से खुद का सोर्स का खुद का मास कम होते जाना चाहिए, सोर्स का खुद का मास कम होना चाहिए ये, लेकिन जब देखा जाता है प्रैक्टिकली कि सोर्स का कोई मास ऐसा कम होता नहीं है पार्टिकल्स को इमिट करने की वजह से या लाइट को इमिट करने की वजह से, दैट क्रिएट्स अ मेजर प्रॉब्लम इन द न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी. And the third thing is that the simultaneous reflection and refraction cannot be explained on the basis of Newton's corpuscular theory. And even Newton's corpuscular theory gives us the incorrect result that the speed of light should be greater in the denser medium than it is in the rarer medium, because whenever the particles are incident on the refracting surfaces, they are attracted by the refracting surfaces. So attraction, due to this attraction, the speed of the corpuscles must increase, and hence the light should travel with a higher speed in the denser medium than it travels in the rarer medium. But actually the observation is exactly opposite of that. Observation is that the light travels slower in the denser medium, and it travels fastest with the fastest speed in a rarer medium or in vacuum, which is contradiction, which proves that the Newton's corpuscular theory has to be modified, has to be has some limitations, and it cannot explain all the things or all the phenomena in light, and it cannot give the answers of the contradictions produced here, and that's why the Newton's corpuscular theory was rejected. Okay, but afterwards, as we have seen last time, Huygens have put forward a new theory which includes the which is called as a Huygens wave theory of light, which includes the concept of waves in this theory. And the first point of this theory is that light consists of waves, और वो भी कौन से waves? Mechanical waves, और वो भी mechanical longitudinal waves. ठीक है. Huygens considered the light to be consisting of mechanical longitudinal waves. But अभी जैसे ये waves बोलेगा तो उसको पता था कि next point will be that what is the medium then? How can the waves travel without any medium? तो ये point आएगा, तो जरूर उसने उसने क्या किया, second point के अंदर उसने include किया कि there is a invisible 100% transparent and means a very very small density medium which is pervading in all the universe, in the whole universe. तो पूरे यूनिवर्स के अंदर
एक ऐसा इनविजिबल मीडियम फैला हुआ है जो कि दिखता नहीं है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, और वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं हम क्योंकि वो डेंसिटी उसका बहुत कम है। तो डेंसिटी कम होने की वजह से और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से तो वो हमको दिखाई नहीं देता है और डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। बट दैट मीडियम इज ऑलरेडी देयर इन द होल यूनिवर्स, इन इवन इन वैक्यूम ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ दैट मीडियम लाइट कैन ट्रेवल इन द वैक्यूम ऑल्सो, इन द स्पेस ऑल्सो। तो ये उसने ल्यूमिनिफेरस ईथर करके उस मीडियम को नाम दिया। तीसरा पॉइंट उसने इंक्लूड किया कि द वेवलेंथ, अभी जैसे वेव्स है तो वेव्स का वेवलेंथ होता है, हमको पता है, कोई वेव्स का वेवलेंथ कम होता है, कोई वेव्स का वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो वेवलेंथ के अलग अलग होने की वजह से हमको कलर्स मिलते हैं। तो उसने कलर्स को क्या किया, वेवलेंथ के साथ जोड़ दिया। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। So we get different colors because the different waves have different wavelengths, and that's why we get different colors. वो उसने इंक्लूड किया। ये तीसरा पॉइंट उसने यहाँ पे सामने रखा था। And we get the sensation of light when these waves enter into our eyes. तो हमारी आंखों के अंदर जब ये वेव्स इंटर करते हैं तो हमको लाइट का सेंसेशन मिलता है। तो ये उसने इंक्लूड किया यहाँ पे। These are the some points which this whole Huygens wave theory is based upon. But as we can see, merits and demerits. तो जैसे कि मेरिट्स के अंदर अगर हम देखेंगे ठीक से, तो हाइजेंस वेव थ्योरी यूज करके बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है वो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, जैसा कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। वो तो चलो ठीक है, वैसे तो न्यूटन ने भी किया था वो। बट apart from refraction and reflection, the interference can be explained on the basis of Huygens wave theory. Again, diffraction can also be explained on the basis of this Huygens wave theory, and even polarization can also be explained. Not only this, double refraction can also be explained in a better way using this Huygens wave theory. So ये सब चीजें जो है जो कि न्यूटन नहीं कर पाया था, तो वो चीजें हाइजेंस के वेव थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन हो सकती है। Using this Huygens wave theory, we can explain all these things here. The second point here is that according to the Huygens wave theory, it can be proved that the speed of light in rarer medium is greater than the speed of light in denser medium. Okay, जो कि न्यूटन का एक ड्रॉबैक रहा था। न्यूटन का जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है उसके बेसिस पे हमको ये पता चल गया था कि स्पीड ऑफ लाइट इन denser medium is greater than rarer medium, which was a contradiction, right? But here in case of Huygens wave theory, it can be proved that the speed of light in rarer medium is greater than the speed of light in denser medium, which is already correct. We know already that this is correct. We already have experimentally verified this fact, that is light travels with the fastest speed of 3 into 10 raised to 8 meter per second only in vacuum, and whenever it enters into any denser medium, its speed goes on decreasing, it gets slowed down, no doubt. तो ये जो बात है ये उसमें से पता चल रही है हमको कि this was correct according to the Huygens wave theory, and experimentally also this is correct, no doubt. और ये सब चीजें जो है वो Huygens wave theory के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं, no doubt. yes, बट अभी इसमें demerits क्या है, देखो ठीक से, what were the demerits in the Huygens wave theory? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हम यहाँ पे नोट करेंगे वो है इस ल्यूमिनिफेरस ईथर का। ये ल्यूमिनिफेरस ईथर के बारे में जो हाइजेन ने बोला था कि देयर एग्जिस्ट अ मीडियम व्हिच इज परवेडिंग और प्रेजेंट इन ऑल इन होल यूनिवर्स, इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स और इन इवन इन वैक्यूम आल्सो। तो ये जो पॉइंट है ल्यूमिनिफेरस ईथर वाला, वो पॉइंट चेक करने के लिए साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए उस डायरेक्शन में कि सचमुच ऐसा कोई मीडियम होता है क्या जो वैक्यूम के अंदर भी प्रेजेंट है और सभी बॉडीज के अंदर भी प्रेजेंट है, तो उस मीडियम को डिटेक्ट करने के जो एक्सपेरिमेंट्स किए तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स वेस्ट हो गए। तो इससे ये बिल्कुल कंक्लूसिवली प्रूव हो गया कि देयर इज नो सच मीडियम एग्जिस्ट इन द नेचर। ठीक है, नेचर के अंदर ऐसा कोई मीडियम नहीं है जो पूरे यूनिवर्स के अंदर फैला हुआ हो
और उसकी वजह से उसमें उसके अंदर लाइट ट्रेवल करे, तो सबसे ये पहला ड्रॉबैक हो गया उसका। तो ल्यूमिनिफरस ईथर डजंट एग्जिस्ट, इट वाज प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट ईथर डजंट एग्जिस्ट। तो जिस बेसिस पे ये पूरा हाइजेंस वेव थ्योरी खड़ा था, वो बेसिस ही हट गया। ठीक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसका ये माना जाता था कि ईथर डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब ईथर ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस केस में फिर ये सारा जो उसने एक्सप्लेन किया, तो वो एक तरह से वेस्ट ही मान सकते हैं, नो डाउट। लेकिन और इवन उसमें भी आगे चल के एक बात है, हम यहाँ पे आगे चल के समझेंगे। दूसरा ड्रॉबैक हम यहाँ पे लिखते हैं कि द सेकेंड ड्रॉबैक वाज the photoelectric effect, even the Compton effect cannot be explained on the basis of Huygens wave theory. ठीक है, photoelectric effect and Compton effect cannot be explained on the basis of this Huygens wave theory. So these are the this is the second drawback in the Huygens wave theory. And also the third thing is that, अब देखो, अगर लाइट वेव है और वेव का प्रॉपर्टी होता है बेंड होना, हम जानते हैं कि एवरी वेव बेंड्स, राइट? बट देन व्हाई लाइट डजंट बेंड कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइजेंस वेव थ्योरी अगेन, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वी ऑलरेडी सीन दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। व्हाई दिस हैपेंस, but why the waves doesn't bend, मतलब why the light doesn't bend, that cannot be explained on the basis of Huygens wave theory। मतलब उसको हम बोल सकते हैं rectilinear propagation of light। That means why the light travels in straight line only and doesn't bend like other waves। जैसा भी साउंड है, साउंड जब हम देखते हैं तो साउंड सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही नहीं जाता है, बल्कि वो साउंड जो है वो स्प्रेड भी होता है, अलग अलग डायरेक्शंस में बेंड भी होता है साउंड वेव्स जो है। तो ये इस तरह का जो बेंडिंग है वो लाइट के बारे में क्यों नहीं होता? तो ये इट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइजेंस वेव थ्योरी। सो दीज आर द डिमेरिट्स वी कैन से। अंडरस्टैंड केयरफुली। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइजेंस वेव थ्योरी के पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स उसने इंक्लूड किए थे। द लाइट इज नथिंग बट अ मैकेनिकल लॉन्जिट्यूडनल वेव, and these waves are emitted by the source of light and travel in the straight line, and also there is exist a luminiferous ether, the hypothetical medium which is present in all bodies, material bodies, as well as in vacuum. So that is the second point. The third point is that the different colors are due to different wavelengths of waves, light waves, and whenever these waves enter into our eyes, we can get a sensation of light. So these are the points included by this Huygens wave theory. What were the merits? Reflection, refraction, interference, diffraction, polarization, double refraction, all these these complicated phenomena which were very difficult to explain on the basis of Newton's corpuscular theory were explained successfully by Huygens wave theory. The second thing is that speed of light is found to be greater in the rarer medium than it is in the denser medium, which is experimentally verified. Experimentally also it is correct, no doubt. But the demerits are, the सबसे पहला demerit क्या है यहाँ पे? Ether doesn't exist। ये यहाँ पे खत्म हो गया। बहुत बड़ी बात यहाँ पे हमको पता चल गई कि ईथर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जो उसने ये दूसरा वाला पॉइंट इंक्लूड किया था, क्योंकि वेव्स जो है वो किसी भी मीडियम के बिना ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, तो कोई ना कोई मीडियम वेव को चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, तो इसीलिए उसने ये पॉइंट इंक्लूड किया था ल्यूमिनिफरस ईथर एग्जिस्ट करता है करके। बट व्हेन द एक्सपेरिमेंट्स, केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स वेर डन, it was revealed that there is no such medium which exists in the whole nature or in the whole space or in the vacuum also. So this is the first drawback. The second demerit we can say, photoelectric effect and Compton effect cannot be explained on the basis of this Huygens wave theory. और तीसरी बात हम देख सकते हैं कि if light is a wave, then why doesn't bend light like all other waves? जैसे बाकी सब वेव्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है बेंड होने का, तो ये प्रॉपर्टी लाइट के अंदर क्यों नहीं है? दिस कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइजेंस वेव थ्योरी। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है? अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो चैट में या अनम्यूट करके। ओके, नो डाउट्स। चलो ठीक है। सो अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली
हाइजेंस वेव थ्योरी के अंदर जो डीमेरिट्स थे वो डीमेरिट्स एक्चुअल सेंस में डीमेरिट्स नहीं थे, क्योंकि these demerits were just considered to be the lack of knowledge। ये पहला और तीसरा जो डिमेरिट है तो वो तो एक्चुअली जस्ट लैक ऑफ नॉलेज की वजह से था, ऐसा हम मान सकते हैं। क्योंकि देखो ईथर का जो ये है पॉइंट है वो उसने क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि उसको पता था कि जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स है या मैकेनिकल वेव्स जो होते हैं उनको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम लगता है। लेकिन अगर उसको ये पता रहता कि ऐसे भी कोई वेव्स होते हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम अभी जानते हैं ऑलरेडी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं लगता है, दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम आल्सो। बट ये अभी हम जानते हैं ना, उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। तो उसकी वजह से उसने ये जो ल्यूमिनिफेरस ईथर वाला जो पॉइंट है वो उसके अंदर वहां पे इंक्लूड किया। तो इसलिए एक्चुअली सेंस में ये जो पॉइंट उसने इंक्लूड किया वो एक्चुअल सेंस में ड्रॉबैक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अगर इन्वेंशन ही नहीं हुआ था तो इसलिए उसको वो ड्रॉबैक मतलब वो जो पॉइंट है ईथर वाला वो इंक्लूड करना पड़ा था। और दूसरी बात की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पेल इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी, बट इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग द फोटोन थ्योरी which was done by Einstein later on। एंड तीसरा जो है कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, व्हाई लाइट डजंट बेंड, तो उसका भी आंसर यही है कि लाइट एक्चुअली बेंड्स and its bending itself is called as diffraction, which you have to see in this chapter in the later part। and but that bending is very very small। वो बेंडिंग इतना छोटा होता है कि वो हमको बिल्कुल नॉर्मल आंखों से हमको दिखाई नहीं देता है, और इसीलिए हमको ये लगता है कि लाइट ट्रेवल्स ओनली इन द स्ट्रेट लाइन। बट एक्चुअली लाइट कैन ऑल्सो बेंड like other waves, but its bending is very small because its wavelength is already very small, and that's why its bending is so small that we cannot detect it from eyes, but bending तो होता है। तो इसका मतलब ये जो तीसरा पॉइंट है कि why light doesn't bend, ये पॉइंट एक्चुअल सेंस में अगर देखा जाए तो डिमेरिट है ही नहीं। ठीक है, तो अभी इसमें देखा जाता है कि इन डिमेरिट्स को ओवरकम करने के लिए फिर बाद में चल के मैक्सवेल ने और एक थ्योरी सामने रखा। मैक्सवेल्स फोटोन थ्योरी वी कैन से। अभी मैक्सवेल ने क्या किया कि इस लाइट के जो ये जो 4 पॉइंट्स है उन्हीं 4 पॉइंट्स को उसने इंक्लूड किया उसके थ्योरी में, लेकिन सिर्फ थोड़ा मॉडिफिकेशन उसके अंदर किया। देखो क्या मॉडिफिकेशन किया। सबसे पहले उसने ये इंक्लूड किया कि लाइट, ये जो हाइजिन ने बताया था कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी मैकेनिकल लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ठीक है, तो मैकेनिकल लॉन्जिट्यूडिनल वेव उसने बताया था हाइजिन ने। तो उसके बदले मैक्सवेल ने क्या किया कि इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेट मैकेनिकल बट इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि मैक्सवेल ने जब ये थ्योरी सामने रखा तो उस समय तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता हो गया था, इन्वेंशन हो चुका था, और ये बात बिल्कुल क्लियर पता चल गई थी कि देयर आर सम वेव्स which do not require any medium for their propagation, just like we can say जो ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होते हैं, जो कि हम रेडियो वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम मोबाइल के अंदर यूज करते हैं, या जिससे हम रेडियो सुन सकते हैं, या जिससे ही चैनल्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। तो ये सारे जो वेव्स है, दीज आर द वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ठीक है ना, इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा स्पेक्ट्रम ही होता है। तुमको ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में तुमने देखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम गामा रेज, gamma rays are electromagnetic waves, first category of electromagnetic waves। then the second is ultraviolet rays or x rays we can say। तो x rays होते हैं या ultraviolet rays हुआ करते हैं, फिर infrared rays भी होते हैं, या माइक्रोवेव्स होते हैं, या रेडियो वेव्स भी होते हैं। तो ये सब के जैसे ही लाइट भी एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ये मैक्सवेल ने सबसे पहली बार यहाँ पे सामने रखा। ठीक है ना, जैसे ये बाकी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो कि बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकते हैं, तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, ये उसने मैक्सवेल ने सामने रखा। एंड जस्ट एज वी नो ऑलरेडी दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑफ ट्रांसवर्स टाइप ओनली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स ही होते हैं, तो इसलिए उसने यहाँ पे एज्यूम किया कि लाइट इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो सबसे पहली बात क्या की उसने
मैकेनिकल लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बदले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये डाल दिया, ठीक है। अब ये जो दूसरा पॉइंट है उसको यहाँ पे ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं बची, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो तो डायरेक्ट बिना मीडियम के किधर भी ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, तो उसके लिए इस ईथर की जरूरत ही नहीं है, ईथर कोई भी मीडियम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो इसलिए उसने ये पॉइंट इंक्लूड किया था हाइजिन ने। लेकिन यहाँ पे मैक्सवेल को वो पॉइंट इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसने ऑलरेडी लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज्यूम कर लिया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम लगता ही नहीं है, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम आल्सो, and that's why the second point was not needed actually. The third point was kept as it is, that is the color of light is due to the different wavelengths of waves. ओके तो ये अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से हमको अलग अलग कलर्स मिलते हैं, बिल्कुल। और एक पॉइंट उसने इंक्लूड किया यहाँ पे जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वो क्या कहता है, हमने ऑलरेडी देखा है केमिस्ट्री के अंदर, तुमने लास्ट ईयर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर देखा होगा कि मैक्स प्लैंक टेल्स अस दैट द एनर्जी इज नॉट रेडिएटेड कंटिन्यूअसली बट इट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ओके, हम जैसा समझते हैं कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअसली इमिट होता रहता है, ऐसा लेकिन नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है। मैक्स प्लैंक उसका जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है वो क्या कहता है कि एनर्जी इज ऑलवेज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एंड दोस पैकेट्स वेर कॉल्ड एज क्वांटा बाय मैक्स प्लैंक ओनली, बट एंड द एनर्जी ऑफ वन क्वांटा इज गिवन बाय द फॉर्मूला E is equal to h nu. ये हम सभी को पता है ऑलरेडी, E is equal to h nu, where h is going to be the Planck's constant and nu is called as the frequency. Nu is the frequency of that energy. तो कोई भी वेव जो है तो वो वेव कंटिन्यूअसली इमिट नहीं होता है, बल्कि वो पैकेट्स में इमिट होता है। अगर मान लो ये सोर्स है तो इस सोर्स में से एक पल्स निकल गया, ये इसका एनर्जी कितना रहेगा इस पल्स का, the energy of this pulse will be h nu, no doubt. After that the second pulse will be emitted by the source. So this is the second pulse, suppose actually this is first and this is second, because ये जो पल्स पहले इमिट होगा वो आगे चला जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा पल्स यहाँ पे इमिट होगा, then third pulse will be emitted and this is the third pulse. You can say this is the first one, second, third, like this. So this is the emission of waves from a source. So whenever the source emits the waves, it doesn't emit it continuously, but it emits in the form of the packets, and one such packet have the energy which is given by h nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency, and here this one such packet is called as photon. Remember, photon बोलते हैं इसको। One such packet of light will be called as photon. In general, Max Planck has called this as क्वांटा, ठीक है ना। एक पैकेट को उसने क्या बोला था एक्चुअली, क्वांटा बोला था, क्वांटा, नो डाउट। लेकिन अभी चलो इन जनरल फॉर एनी वेव्स वी कैन कॉल इट एज क्वांटा, बट ओनली फॉर लाइट द पैकेट ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोन। तो एक फोटोन का जो एनर्जी है वो h न्यू इतना होता है, ये हमने यहाँ पे एज्यूम किया। तो दिस इज द E is equal to h nu. This is the third point included by Maxwell in his theory, which tells us simply that light is not emitted continuously, but it is emitted in the form of packets, and the energy of one packet is given by h into nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency of light, where h is going to be 6.63 into 10 raised to minus 34. We already know it as it is joule second, and the one such packet is actually called as photon. This is the one photon, and energy of one photon is given by this formula, and these photons can be considered to be separate particles. And whenever we consider this here, then we can just explain this photoelectric effect and Compton effect here, because Einstein have explained the photoelectric effect by assuming the light to be a particle made up of particles. मतलब आइंस्टाइन ने जब ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया तो उसके लिए उसको पार्टिकल थ्योरी का सहारा लेना पड़ा। मतलब उसको ये एज्यूम करना पड़ा कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर इमिटेड वन आफ्टर वन अदर, एंड यूजिंग दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन, एंड ये जो h nu वगैरह जो कांसेप्ट यूज करके उसने
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करके दिखाया। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसने एक्सप्लेन करके दिखाई। और इवन कॉम्पटन इफेक्ट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेम फोटोन थ्योरी, नो डाउट। तो इसके लिए हमको यहाँ पे फोटोन वाला जो कंसेप्ट है तो वो जरूर इंक्लूड करना जरूरी था, तो इसीलिए वही मैक्सवेल ने किया। तो मैक्सवेल ने क्या किया, हाइजीन वेव थ्योरी के अंदर जितने भी सारे पॉइंट्स थे उनको एज इट इज इधर कैरी फॉरवर्ड किया, बट उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन किए। जैसे कि मैकेनिकल के बदले उसने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज्यूम कर लिया, और बाकी जो लाइट जो कंटिन्यूअसली इमिट होता है, बल्कि कंटिन्यूअसली नहीं बल्कि पैकेट्स में इमिट होता है, ऐसा एज्यूम करके एक पैकेट को फोटोन नाम दे दिया। और एक फोटोन का जो एनर्जी होता है वो h इंटू न्यू के बराबर हुआ करता है, ये उसने एज्यूम कर लिया। तो इससे ये मैक्सवेल्स थ्योरी बन गया। दिस इज द मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ लाइट which can explain all the phenomena in light, ठीक है ना। even these also photoelectric effect as well as Compton effect also, these can also be explained, and these complicated phenomena which were explained by Huygens wave theory, that can also be explained on the basis of this Maxwell's theory. See, because here we can just come into the picture that light is not emitted in the form of light is not emitted continuously, but it is emitted in the form of packets. And these are the packets: one packet, second packet, third packet. These packets are actually called as photons. And because of this here, we can see that the light has accepted to be of dual nature. ये लाइट ड्यूअल नेचर का होता है, या लाइट शोज ड्यूअल नेचर, ये हमने यहां से एक्सेप्ट किया। क्योंकि ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है, लाइट कैन बी कंसिडर्ड टू बी waves whenever required, and light can be considered to be like particles also whenever required. तो इसका मतलब लाइट का जो रे है तो उसको हम वेव्स तो है ही, वो वेव्स तो है नो डाउट, लेकिन वेव भी जैसे हम स्ट्रिंग के ऊपर वेव्स फॉर्म करते हैं, जिसके अंदर स्ट्रिंग के ऊपर वेव्स कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे वेव्स नहीं है, बल्कि वेव्स जो है वो दे आर मेड अप ऑफ पल्सेस, one pulse, second pulse, third pulse, and so on like that. These pulses are called as photons, and these photons actually act like particles, and that's why the light can behave like particles whenever these photons are considered. ये एक photon, दूसरा photon, these photons are just completely detached from each other, and because of that we can consider the light to be made up of photons which are traveling one after another, and that's why the light is said to have a dual nature. ठीक है ना। तो ये ड्यूअल नेचर का कंसेप्ट समझा ठीक से। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है, it can be considered as wave also. It shows the properties of wave, and also it shows the properties of particles, because these wave packets can be considered like particles, and that's why the light behaves like particle also, and as well as it behaves like waves also. ठीक है। So this is the dual nature of light which has been accepted on the basis of this Maxwell's theory. But again, the important point here to note here is that the credit जो है doesn't goes to Maxwell. Actually, the credit goes to Huygens. Why? Because Huygens have done lots of efforts in explaining reflection, refraction, interference, diffraction, polarization, and double refraction on the basis of this Huygens wave theory. In spite of both of these demerits are already there, you know, demerits were already there, but still Huygens have successfully explained this reflection, refraction, all these complicated phenomena in light in a very successful way, or even in a very natural or matter of fact way, and that's why the credit of this explanation goes to Huygens, not to the Maxwell. मैक्सवेल ने क्या किया, सिर्फ थ्योरी के अंदर थोड़े चेंजेस करके नया थ्योरी बना लिया। एक्चुअली है तो वो वही थ्योरी, सिर्फ उसने थोड़ा चेंज किया। और उसमें वो भी चेंज भी क्यों किया, क्योंकि उस समय के हिसाब से वहां उस समय नॉलेज नहीं था, मतलब लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उसको मैकेनिकल लॉन्जिट्यूडनल वेव्स एज्यूम करना पड़ा था, और ये वाला पॉइंट इंक्लूड करना पड़ा था, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता ही नहीं था। अगर उसको पता रहता तो वो भी वही करता जो मैक्सवेल ने किया है कि नहीं। इसलिए क्रेडिट जो है वो एक्चुअली Huygens को जाता है, और इसलिए इसके आगे भी हम Huygens के द्वारा जो किए हुए एक्सप्लेनेशंस है वही हम यहाँ पे आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट द थियोरीज।
ओके, अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली हाइजिन्स ने किस तरह से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करके दिखाया। ठीक है, तो उसके लिए उसने कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स उसने तैयार किए, जिसमें सबसे पहला है वेव फ्रंट और दूसरा है वेव नॉर्मल। देखो ठीक से, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या है वो हम एक बार पहले देख लेंगे, और उसके बाद फिर उसके बेसिस पे जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेनेशन है उसका, वो कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो देखो व्हाट इज वेव फ्रंट एक्चुअली। सी, इफ सपोज देयर इज अ स्टिल लेक ऑफ वाटर and suppose we put or throw a stone in that still lake of water, what happens is this that stone becomes a source. वो स्टोन जहां पे टच करता है वाटर को, वो एक तरह से एक सोर्स बनता है, और उसके वहां से वेव्स निकलते हैं। और हम देख सकते हैं कि जो वेव्स है, पहला जो क्रस्ट है वो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में निकलता है। उसके बाद वो क्रस्ट जब आगे एक्सपांड होता है, तो उसके बाद उसी शेप का दूसरा क्रस्ट उसमें से निकलता है, सोर्स में से निकलता है। सेम वैसे ही जब वो क्रस्ट और आगे एक्सपांड होता है, तो सोर्स में से तीसरा क्रस्ट बाहर निकलता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक के बाद एक इस तरह से क्रस्ट बाहर निकलते जाते हैं, और उसकी वजह से हमको ये जो पूरा वेव है ठीक है, तो ये जो वाटर के ऊपर जब हम एक सोर्स यहाँ पे एक पत्थर डालते हैं, तो दैट पॉइंट बिकम्स अ सोर्स एंड द वेव्स आर स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शंस फ्रॉम दिस। तो वेव का डायरेक्शन का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन कौन सा है अभी यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो वेव विल बी प्रोपोगेटेड इन दिस डायरेक्शन। अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो वेव्स विल बी प्रोपोगेटेड इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। सो एट एवरी पॉइंट द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स विल टेक प्लेस इन दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो है, ये जो सरफेस है और ये जो है, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं एक दूसरे को, हमेशा हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। देखो अगर यहाँ पे देखते हैं तो दिस इज द सरफेस, एंड इफ यू जस्ट ड्रॉ द direction of propagation of the waves, then it will be just perpendicular to that surface at that point actually. So in this same way here, light also is propagated in the form of wave fronts. Suppose this is the source, ये समझो एक source है, तो whenever the source is switched on, जैसे उसमें से light निकलता है, तो light waves travel the same distance in same time in all directions. तो जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके, सेम डिस्टेंस सेम टाइम के अंदर ट्रेवल करने के बाद, ये वेव्स इन सभी को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, सभी डायरेक्शन में जाने वाले वेव्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, तो हमको पता चलेगा कि दे ऑल दीज पॉइंट्स विल बी इन सेम फेज, दे विल फॉर्म अ स्फीयर एक्चुअली। यहाँ पे तो चलो एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल क्योंकि वहां पे एक प्लेन सरफेस है इसलिए सर्कल बनाते हैं। लेकिन अगर एक पॉइंट सोर्स जो है वो अगर हमने बीच में एक स्पेस में अगर रख दिया, तो जैसे उसमें से लाइट निकलता है तो वो चारों तरफ फैलेगा और एक ऐसा स्पीयर बना लेगा, स्पीयर। तो वो स्पीयर जो है वो जैसे ही एक्सपांड होगा, तो उसके बाद दूसरा स्पीयर इस सोर्स में से निकलेगा, फिर वो स्पीयर भी एक्सपांड होगा तो तीसरा स्पीयर इसमें से निकलेगा, एंड सो ऑन लाइक दैट इट विल गो ऑन इन दिस वे। तो यहाँ पे जैसे अगर ये सपोज एक सोर्स है, तो इस सोर्स में से जैसे ही फर्स्ट क्रिस्ट निकलता है, तो it will form a small sphere like this, whose radius will be exactly same as the wavelength of the wave or wavelength of light. Then again this sphere just expands after some time, and the new sphere will just get emerged from the source. तो इस तरह से ये स्पीयर जैसे ही बढ़ता है आगे, तो वो क्रस्ट का स्पीयर है, तो वो क्रस्ट वाला स्पीयर बढ़ गया आगे, एक्सपांड हो गया, और उसकी जगह पे दूसरा एक स्पीयर आ गया। फिर वापस यहाँ पे ये जो बाहर वाला स्पीयर है वो और ज्यादा एक्सपांड होगा, और इसमें से ये जो सेकेंड फर्स्ट वाला जो स्पीयर था वो और थोड़ा एक्सपांड होगा, और उसके उसमें से सोर्स में से और एक स्पीयर इसमें से निकलेगा। तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, और इसी फॉर्म में लाइट जो है वो ट्रेवल करता है, प्रोपोगेट किया जाता है। सो हियर द वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट, अगर हम टाइम को अगर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर रोक सकते हैं, तो एक्चुअली वी कैन नॉट स्टॉप द टाइम,
but if we can stop the time, then we can at any instant we can just find all the points to be on the sphere in the same phase, and those all the points joined together will be called as that wave front at that instant. ठीक है, तो उस समय का जो वेव फ्रंट है वो उसको हम बोलेंगे इट इज द वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट. अगर सपोज हम टाइम को और थोड़ा आगे चल के अगर रोक देते हैं तो यही वेव फ्रंट क्या होगा, इनलार्ज होके ये ऐसा बन जाएगा. दिस विल बी द वेव फ्रंट एट एनी लेटर इंस्टेंट लाइक दिस. ये भी वेव फ्रंट ही है, लेकिन ये थोड़ा सा डेल्टा टी टाइम के बाद का वेव फ्रंट है. सपोज दिस इज द वेव फ्रंट एट टाइम टी एंड दिस इज द वेव फ्रंट एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी लाइक दिस. सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस डेल्टा टी टाइम के अंदर क्या हुआ, ये वेव फ्रंट थोड़ा सा इनलार्ज हो गया, एक्सपांड हो गया. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट. सेम वैसे ही जैसे पानी के अंदर रिपल्स पैदा होते हैं तो वहां पे सर्कल्स बनते हैं, तो यहाँ पे लाइट के अंदर सर्कल्स नहीं बनते हैं बल्कि स्पीयर्स बनते हैं. सर्कल और स्पीयर में समझा ना क्या फर्क होता है. सर्कल इज जस्ट अ 2-dimensional शेप which happens to be on the plane only, but sphere is a 3-dimensional concept which happens to be in space, and that's why in case of light we have to assume the wave front to be the locus of all the points where the waves reach simultaneously, so that all those points are going to be in the same phase. That is called as a wave front. I will repeat again. The wave front is the locus of all the points. Locus matlab set. ठीक है, so locus of all the points at which the waves reaches simultaneously, so that all those points are going to be in same phase. That is called as a wave front at that particular instant, and this wave front goes on expanding in size as time goes on increasing. जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे एक पर्टिकुलर वेव फ्रंट अगर हम देखेंगे तो इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ओनली. जस्ट लाइक अगर सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज द सन. ओके, ये सन है, तो उसमें से जो सबसे पहला वाला जो वेव फ्रंट इमिट होगा, दैट वेव फ्रंट विल बी जस्ट लाइक अ स्फीयर फॉर्म्ड हियर इन दिस वे. एक सेकंड के बाद अगर हम देखेंगे तो एक सेकंड में लाइट कितना ट्रैवल करता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है. सो इफ वी जस्ट ड्रॉ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 × 10⁸ meters, then that will be a sphere which is called as the wave front after 1 second. करेक्ट है, एक सेकंड के बाद ये वेव फ्रंट फॉर्म हो गया. Where will be the wave front after 2 seconds? How can we show it here? तो 2 सेकंड के बाद क्या होगा, देखो, the light will travel a distance which is equal to 6 × 10⁸ meter, right? And in that time, in 2 seconds, the wave front will just get enlarged, and it will be a sphere of radius 6 × 10⁸ meter like this. What will after 3 seconds? Again we can just say after 3 seconds the light will travel a distance which is equal to 9 × 10⁸ meters, and because of that it will be another sphere whose radius will actually be equal to 9 × 10⁸ meter in this way. तो 3 सेकंड के बाद ये वेव फ्रंट इतना बड़ा बन गया. 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, ऐसा हम कर सकते हैं आराम से. एंड वी कैन जस्ट इमेजिन हाउ द वेव फ्रंट विल बी enlarging second by second like this here. So in this way the light goes on getting propagated in all different directions in the form of these wave fronts, remember. And what about the wave normal then? What is wave normal? See here, just like यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस वेव फ्रंट एट एवरी पॉइंट. सो दैट इज दिस परपेंडिकुलर इज एक्चुअली कॉल्ड एज वेव नॉर्मल. If you want to find out the wave normal at this point here, we will have to draw the perpendicular at that point here in this way. So at any point we can just draw the perpendicular to the wave front and call it as a wave normal. So what is wave normal? The perpendicular drawn to the wave front at any point is actually called as wave normal. Remember, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे अगर perpendicular draw करते हो so this will become the wave normal at this point particularly. Okay. So wave normal actually gives us the direction of propagation, or the wave normal actually gives us the direction in which the energy is carried out by the waves. जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रैवल करता है वो डायरेक्शन हमको वेव नॉर्मल से ही मिलता है. एक्चुअली लाइट के बारे में अगर देखा जाए तो वेव नॉर्मल इज नथिंग बट द
रे ऑफ लाइट। जो हम 10th स्टैंडर्ड में रे डायग्राम ड्रॉ करते थे कि नहीं, तो वो रेज मतलब क्या थे एक्चुअली, उन रेज को ही साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, वेव नॉर्मल कहा जाता है। ठीक है, वेव नॉर्मल मतलब कोई एकदम बड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। वेव नॉर्मल मतलब हमारा रे, जो जिसको 10th स्टैंडर्ड में हम एक्चुअली रे बोला करते थे, वो उसको अभी हम 12th स्टैंडर्ड में वेव नॉर्मल बोलने वाले हैं। ठीक है, कंसेप्ट इज द सेम ओनली। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी द सेम, simply the perpendicular drawn to the wave front is called as the ray or wave normal, remember. So this is all about the wave front and wave normal. Now the next concept about the Huygens principle, we'll see it in the next lecture tomorrow. Okay.